Welcome guys. This is Dr. Anil Vox channel is the way to study. So guys, earlier we used to study physiology like a audiobook. Okay, I used to speak and give some explanation from that point, and you used to listen. But now I'm also giving you physiology lecture on video format also. Okay, so guys, we'll start from that way. So I hope you all are enjoying this series. So last time we have done with microbiology. Okay, we'll get back to that again. So we'll again touch some chapter from physiology. Okay, so those who are new to our channel, so let me tell you that we have completed 12 or 12 to 13 lectures from microbiology. We have emergency data BLS, okay, CPR lecture, one lecture on CPR. We have human physiology 11 lectures, pharmacology we have basic pathology lectures. So for physiology we are using Guyton, okay, addition 10. So let's start then. We have completed around 14 chapters from, okay, we have completed up to here. Okay, this is 14 chapter. Okay, chapter 14, and the name of this chapter is the circulation. Okay, so this is unit 4, circulation. Okay guys, we have all these we have completed. Okay, but this was in the audio format, just listen to that. So from now we will see as this, like you can also see the chapter also. Okay, so this is our chapter name, overview of the circulation, medical physics of the pressure, flow and resistance. This is really important chapter to understand how we control the pressures, how the medicine controls the pressures. Okay, so to study this deeply. Okay, so all this we have studied. सो जस्ट जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो प्लीज़ उन्होंने पहले के लेक्चर सुन लेना. तो अब हम देखते हैं. वी आर रिमेनिंग विथ द ब्लड प्रेशर. ओके, सो we will complete our blood pressure remaining. Okay, so this, here it is, blood pressure. So what is blood pressure? Okay, you all know what is blood pressure. It is measured in the millimeters of mercury. Okay, what is unit for that is millimeter of mercury. Okay guys, so the because the mercury is the manometer, of course we will see this figure has been shown since antiquity. Okay, so let's see what they have. Yeah, you can see this image. Okay, this is the pressure. Okay, this is 0. This includes, this is moving suited paper. Earlier we used to have this kind of. Okay, but now there are tons of measuring pressure. So actually the blood pressure means it is the force. Okay, it is the force exerted by the blood. Of course, as we know, this is blood pressure, so it is what? It is the force which is exerted by blood against any unit area of, means any unit area of vessel wall. Okay, so this is blood vessel, this is unit area. On this unit area, so this is the force exerted from what? From this vessel blood will go, so this blood will exert pressure on this unit area. Okay, so this is nothing but a blood pressure. This is definition. Okay, this is definition. What actually the blood pressure means? The force exerted by blood against the any unit area of vessel wall. Okay,
What is arterial blood pressure? Arterial blood pressure is the force exerted by blood on the any unit area of arterial. Okay, so this is arterial blood pressure. Then when one says that the pressure is in vessel is 50 mmHg, उसका मतलब क्या होता है? अगर कोई बोलता है कि 50 mmHg का ब्लड प्रेशर है वेसल के अंदर, सो उसका मतलब होता है कि ये जो फोर्स होता है जो ब्लड ने एग्जर्ट किया है इज़ अ सफिशिएंट टू पुश द कॉलम ऑफ मर्क्यूरी। इसका मतलब ये जो फोर्स है 50 mmHg का, ये इसका मतलब वो ब्लड का जो उतना प्रेशर उसने लगाया है कि वो जो मर्क्यूरी का कॉलम होता है जो हम मैनोमीटर देखेंगे उसके अंदर, वो 50 mmHg तक लाइक उसके अंदर लेवल रहती है 10, 20, 30, 40, 50, राइट। सो यहाँ से ये कॉलम ऑफ मर्क्यूरी को 50 के लेवल तक वो पुश कर सकता है, इतना वो प्रेशर ब्लड एग्जर्ट कर रहा है, ठीक है। सो इफ़ द प्रेशर इज 100 mmHg, इसका मतलब दैट ब्लड हैज़ द पावर टू पुश दैट मर्क्यूरी अबाउ अप टू लेवल ऑफ 100, okay. So this is what it is. Then now occasionally the pressure is measured in centimeter of water, okay. कुछ समय में हम लोग ने देखा है कि जो प्रेशर है वो सेंटीमीटर ऑफ वाटर के अंदर भी गिना जाता है, ठीक है, नापा जाता है। सो उसका क्या होता है 10 सेंटीमीटर ऑफ H2O मतलब क्या होता है? 10 सेंटीमीटर ऑफ H2O मतलब इट इज़ द प्रेशर विच इज सफिशियंट टू रेज द कॉलम ऑफ वाटर। वहाँ पर क्या होता, जो प्रेशर था वो कॉलम ऑफ मर्क्यूरी, सो यहाँ पर कॉलम ऑफ वाटर अगेंस्ट द ग्रेविटी टू द हाइट ऑफ 10 सेंटीमीटर। अगर 10 सेंटीमीटर ऑफ H2O है, इसका मतलब ये है, ठीक है, इसका मतलब ग्रेविटी ऐसी एक्ट होगी, ठीक। सो यहाँ पर अगर पानी है, समझ लो वाटर है, ठीक। सो अगर 10 सेंटीमीटर है तो ये वाटर को वो 10 सेंटीमीटर तक पुश कर पाएगा, इतना प्रेशर है, ठीक है। सो समझ लो ये 10 सेंटीमीटर है, थोड़ा बड़ा रंग करूँ, चलो मान लो यहाँ तक 10 सेंटीमीटर, ओके, दिस इज 10 सेंटीमीटर, दिस लेंथ इज 10 सेंटीमीटर। सो यहाँ पर वाटर है, of course the gravity will act like this in this direction. So if we push this water against gravity, okay, अब कितना हम पुश कर रहे हैं? अगर हम 10 सेंटीमीटर ऑफ H2O अगर बोला है प्रेशर, इसका मतलब हम 10 सेंटीमीटर अगेंस्ट ग्रेविटी के पुश कर रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब हो गया 10 सेंटीमीटर ऑफ H2O प्रेशर, ओके, गॉट इट गाइस। नाउ वो लेवल तक लेके गया, सो 1 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी प्रेशर, अब कितना होता है 1 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी प्रेशर कितना होता है 1.36 सेंटीमीटर ऑफ वाटर प्रेशर। अब 10 सेंटीमीटर ऑफ वाटर प्रेशर हमने देख लिया ना, कहाँ गया 10 सेंटीमीटर, हाँ, दिस 10 सेंटीमीटर का मतलब समझ लिया। उसी तरह से 1.36 सेंटीमीटर ऑफ वाटर प्रेशर, इसका मतलब 1.36 ही वो अगेंस्ट ग्रेविटी पुश कर सकता है, इसका मतलब 1 mm ऑफ मर्क्यूरी। अभी हमने इसमें रिलेशन किया है, जैसे वो 50 mmHg था, 100 mmHg था, ठीक है, 100 mmHg है ना, उसी तरीके से अगर हम 1 mmHg 1 mm 1 millimeter of mercury is equal to 1.36 सेंटीमीटर ऑफ H2O। सो ये रिलेशन है दोनों में, ठीक है, समझ गया। सो बिकॉज द स्पेसिफिक ग्रेविटी, क्यों है इतना, ऐसा क्यों है, बिकॉज द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मर्क्यूरी इज 13.6 टाइम्स दैट ऑफ वाटर। सो मर्क्यूरी की अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी अगर हम देखेंगे तो वो 13.6 टाइम्स है, ओके, और 1 सेंटीमीटर इज 10 टाइम्स एज ग्रेट एज 1 मिलीमीटर, सो 10 टाइम्स करेंगे उसको, ओके। सो दिस इज व्हाई इट इज। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस कंसेप्ट वेरी वेल।
सो लेट्स गो गाइज, आगे जाते हैं। सो हाई फिडेलिटी मेथड्स फॉर मेजरिंग ब्लड प्रेशर। सो हाई फिडेलिटी मेथड्स कौन से? ठीक है गाइज, यहाँ पे देखो पैटर्न के अंदर बहुत सारा चीज़, बहुत इंफॉर्मेटिव चीज़ है, तो कुछ कुछ हम स्पीडली जाएंगे। ठीक है, जहाँ पर एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेनेशन देते रहूँ। ठीक है, सो अदरवाइज पैटर्न कंप्लीट नहीं होगा। सो द mercury in the mercury मैनोमीटर, दैट मीन्स वो अपना ब्लड प्रेशर स्पिग्मोमैनोमीटर, उसके अंदर हैज़ सो मच इनर्शिया। सो उसको इनर्शिया, इट कैन रेज एंड द फॉल रैपिडली। इनर्शिया मतलब क्या है, एक ऊपर भी जाएगा और फॉल भी हो जाएगा। सो इतना उसका इनर्शिया है। ठीक है, सो ऑल द एक्सेलेंट फॉर द रीडिंग। सो ये इनर्शिया उसका ज़्यादा है, इसके वजह से वो रीडिंग के लिए बहुत एक्सेलेंट है। ओके, so it cannot respond to the pressure change that occur more rapidly than about one cycle every 2 to 3 seconds. ठीक है, 1 cycle every 2 to 3 सेकेंड, इसके अंदर अगर रैपिडली चेंजेस हुआ तो ये हम रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे इसके अंदर, ये ड्रॉबैक है उसका। whenever it is desired to record rapidly changing pressure, ओके, जब अभी स्पिग्मोमैनोमीटर का जो प्रॉब्लम था उसके अंदर ये ड्रॉबैक है। अगर रैपिडली चेंजिंग प्रेशर होगा, ये मतलब इतना रैपिडली कि एक साइकिल के अंदर 2 से 3 सेकंड में ये चेंज हो रहा होगा, तो वो रैपिडली इतना नहीं चेंज करेगा, मतलब रिकॉर्ड नहीं करेगा। इसी के वजह से, ठीक है, जब हमको रैपिडली चेंजिंग प्रेशर्स को अगर देखना है तो हमको कुछ दूसरे टाइप से प्रेशर रिकॉर्ड करना पड़ेगा। ठीक है, सो वो हमने 14.8 डायग्राम में देखा है। 14-8 demonstrates the principles of a 3 electronic pressure transducer, okay, commonly used for the converting blood pressure or the rapid changing pressure into electrical signal. So transducer होते हैं, वो क्या करता है, जो ब्लड प्रेशर को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देगा। ठीक, इसके वजह से हमको रैपिडली चेंजिंग प्रेशर को पता चलेगा। सो देन the recording electrical signals on the high speed electrical recorder, of course. So each of these transducer uses very thin and highly stretched metal membrane that forms a one wall of the fluid chamber. Okay, the fluid chamber in turn is connected through a needle or a catheter. So ये जो fluid chamber है, so एक needle या फिर catheter से उसको connect किया जाता है। ठीक है, in which the pressure is to be measured. ठीक है, जहाँ पर प्रेशर मेजर करेगा। when the pressure is high the membrane bulges slightly, of course, and when the pressure is low then it returns to its resting position. मतलब क्या होता है, जब प्रेशर हाई हो जाएगा तो वो जो मेम्ब्रेन है वो फूल जाएगा। ठीक है, ऐसे फूल जाएगा, और वो अगर नॉर्मल आ गया तो वो अपने वापस साइज, रेस्टिंग पोजीशन के साइज में आ जाएगा। ओके, सो दिट इज़ हाउ रैपिडली ये होता है, वो देखेंगे। सो ये है तुम्हारा 14.8, ये है तुम्हारा प्रिंसिपल ऑफ दिस 3 टाइप इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसड्यूसर। ओके, यहाँ इससे तुमको रिकॉर्ड करेगा, इसमें तुमको आएगा। ठीक, देख लो एक बार आएगा, दिस इज हाउ, दिस इज कैनुला, दिस इज चेम्बर, ये उसके अंदर जाएगा, मतलब आर्टरीज या वेन्स, आर्टरीज के अंदर जाएगा, वेसल के अंदर, और ये तुम्हारा है, ये तुम्हारा है फ्लूइड का लेवल। ठीक है, तो चेंज होगा, यहाँ पर वो नीडल होगी जो लेगी उससे। ठीक है, और जो पेपर के ऊपर तुमको दिखाएगी। ठीक, सो अगर ज़्यादा होगा, सो ये जो यहाँ पर तुम्हारा नीडल रहेगा। अंडरस्टूड? सो ये फ्लूइड का लेवल ऊपर हो गया, कम हो गया, तो उस हिसाब से वो कम ज़्यादा करता है। ठीक है, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड। सो ये फिगर के अंदर दिखाया है, पहले ए में दिखाया है, द सिंपल मेटल प्लेट इज अ प्लेस अ फ्यू हंड्रेड ऑफ द सेंटीमीटर अबव द मेम्ब्रेन। ठीक है, सो व्हेन द मेम्ब्रेन और द बल्जेस एंड द मेम्ब्रेन कम्स क्लोजर टू प्लेट, मेम्ब्रेन जो प्लेट के नज़दीक आया, सो देन द इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस बिकम्स, सो इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस बिटवीन दीज 2 प्लेट्स। ओके, this change in the capacitance can be recorded using the appropriate electronic system. ओके, सो ये थोड़ा सा फिजिक्स है गाइस,
जस्ट एक बार रीड कर लो तो थोड़ा सा मैकेनिज्म समझ में आया तो ठीक है, नहीं आया समझ में आया तो कोई भी दिक्कत नहीं, बस इतना याद रखना कि यहाँ पर एक ट्रांसड्यूसर मेथड है, ठीक है। सो ये हम और भी डिटेल में शायद नेक्स्ट चैप्टर में अपने को पता चले, ठीक है। सो पहले ये देख लेते हैं। सो बी में क्या दिखा है, अ स्मॉल आयन स्लज रेस्ट ऑन दी मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन के ऊपर स्मॉल आयन का स्लज वो रख दिया है, एंड दिस कैन बी डिस्पैच अपवर्ड into the center space inside and the electrical wire coil. So the movement of the ion into the coil increases the induction of the coil, and then these two can be recorded electronically. Figure C में क्या लिखा है, is very thin and stretch resistance wire is connected to the membrane, और वो वायर क्या किया था, यहाँ जो वायर वो मेम्ब्रेन उसको कनेक्ट किया था. when this wire is stretched greatly and this resistance increases, when it is स्ट्रेच लेस एंड इट इज रेजिस्टेंस डिक्रीज. स्ट्रेच लेस हुआ तो रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा, स्ट्रेच ज़्यादा होगा तो हो गया. सो दिस चेंज कैन बी रिकॉर्डेड बाय द इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम. कोर्स हमको इसके अंदर ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं है. विद द सम ऑफ दीज हाईली फिडेलिटी टाइप्स ऑफ रिकॉर्डिंग सिस्टम, द प्रेशर साइकिल अप टू द 500 साइकिल्स पर सेकेंड हैव बीन रिकॉर्डेड एक्यूरेटली. सो एक 500 साइकिल पर सेकंड, एक सेकंड के अंदर 500 साइकिल्स वो रिकॉर्ड कर सकता है, ठीक है. इन कॉमनली यूज रिकॉर्डर कैपेबल ऑफ रजिस्टरिंग द प्रेशर चेंजेस दैट अकर एज रैपिडली एज 20 to 100 साइकिल्स पर सेकंड. सो इन दिस मैनर शोइंग द रिकॉर्डिंग पेपर ऑफ दिस, ठीक है. आगे जाते हैं, रेजिस्टेंस टू फ्लो. ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए बहुत. So you need resistance. This resistance is impediment to the blood flow in vessels, but it cannot be measured by direct method, any direct means. ठीक है. So instead the resistance must be calculated from the measurement of a blood flow and the pressure difference between the 2 points in the vessel. So इसके लिए एक फॉर्मूला आएगा अपने लिए. So if this pressure difference, ठीक है, pressure difference between 2 point is 1 mm Hg. अब रेजिस्टेंस कैसे मेजर करना है वो देखते हैं, ठीक है. 1 mm Hg है. सो और उसका फ्लो है 1 ml per second. Understood? The resistance must be calculated from measurement of blood flow. एक ब्लड फ्लो के मेजरमेंट से और प्रेशर डिफरेंस के मेजरमेंट से हमको रेजिस्टेंस पता चलेगा. सो 1 ml per second का उसका प्रेशर डिफरेंस बिटवीन दिस पॉइंट इज 1 mm Hg एंड फ्लो उसका क्या है 1 ml per second, मतलब 1 ml 1 सेकंड के अंदर वो फ्लो करेगा, ठीक है. सो और प्रेशर डिफरेंस क्या है 1. सो द रेजिस्टेंस इज सेड टू बी 1 पेरिफेरल रेजिस्टेंस यूनिट. तो उस समय उसका रेजिस्टेंस क्या होगा 1 पेरिफेरल रेजिस्टेंस, ठीक है. यूजुअली एब्रिवेटेड एज PRU. सो रेजिस्टेंस कौन से इसमें कैलकुलेट करते हैं, पेरिफेरल रेजिस्टेंस यूनिट. सो PRU इज nothing but peripheral resistance unit. ओके. सो वो तो हो गया SI यूनिट में. अब देखते हैं CGS यूनिट में, ठीक है. सो ओकेजनली अ बेसिक और फिजिकल यूनिट कॉल्ड एज अ CGS यूनिट. CGS मतलब क्या, सेंटीमीटर, ग्राम्स और सेकंड, ठीक. सो यूनिट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस द रेजिस्टेंस. सो दिस यूनिट इज डाइन सेकंड सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर, 9 सेकेंड, ठीक है, पर सेंटीमीटर रेज़ टू 5, ठीक है. सो रेजिस्टेंस इन दिस यूनिट कैन बी कैलकुलेटेड बाय फॉलोइंग फार्मूला ऑफ कोर्स. सो क्या दिखा था यहाँ पर, 9 सेकेंड इन द डिनोमिनेटर, दिस इज 9 सेकेंड, ठीक. और रेजिस्टेंस रेज़ टू 5 इन द, सॉरी, दिस इज इन द न्यूमरेटर, दिस इज इन द डिनोमिनेटर. ओके, दिस इज रेजिस्टेंस. सो कितना है हमको वो देखना है. सो 1333 इज 9 इंटू mm Hg ml पर सेकेंड, ठीक है. ये जो भी है फॉर्मूला है, ठीक है, याद रखना फॉर्मूला, इतना भी नहीं ज़रूरी. देखते हैं अब टोटल पेरिफेरल वैस्कुलर रेजिस्टेंस और टोटल पल्मोनरी वैस्कुलर रेजिस्टेंस क्या है वो देखते हैं. सो द रेट of blood flow through the entire circulatory system is equal to the rate of blood pumping by heart.
rate of blood flow through entire circulatory system is equal to the rate of blood pumping by heart. That is, it is equal to the cardiac output. Understood? The rate of blood flow through the entire circulatory system is equal to the rate of blood pumping through heart. Of course, so जो रेट है, जो हार्ट जिस रेट से पंप करेगा उसी तरह से यह रेट ब्लड फ्लो होगा. दैट इज इक्वल टू द कार्डियक आउटपुट. सो कार्डियक आउटपुट से वो इक्वल होगा. ठीक है. इन एडल्ट ह्यूमन बीइंग दैट इज द अप्रॉक्सीमेटली 100 ml per second. So 100 ml per second is the output होगा. So the pressure difference from the systemic arteries to the systemic vein is 100 mmHg. So pressure difference क्या हो जाएगा? Systemic arteries और systemic vein का 100 mmHg होगा. Therefore the resistance of entire systemic circulation called as a TPR, ठीक है, total peripheral resistance is about 100 by 100 is 1 peripheral resistance unit. Understood? सो डिफरेंस कितना है? 100. उसके बाद अगर इन्होंने बोला है कि ये जो पे आउटपुट का वो पर कितना है? 100. सो 100 by 100 इज 1. ठीक. सो इन एडिशन इन विच ऑल द ब्लड वेसल्स थ्रू आउट बॉडी बिकम स्ट्रांगली कंस्ट्रिक्टेड. अगर हमने सब ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट कर दिया, सो द टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस ऑकेजनली राइजेस टू हाई because resistance बढ़ गया as 4pr. Conversely, when the vessels becomes greatly dilated, अगर हम उसको डायलेट कर देगा तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा. ऑफ कोर्स दिस इज वेसल, सो इसके अंदर से फ्लो होने के लिए समझ लो कम रेजिस्टेंस है. ठीक है. वही अगर इसकी हमने ये जो डायमीटर है वो हमने कम कर दी. ठीक है. सो इतना लिक्विड आ रहा है वो इसके अंदर से जाएगा. सो ऑफ कोर्स रेजिस्टेंस विल बी हाई कंपेयर टू दिस. ओके. सो यहाँ पर जो पी आर यू होगा उसकी वैल्यू कम होगी, यहाँ पर पी आर यू की वैल्यू ज़्यादा होगी. ठीक है गाइस. सो इन पल्मोनरी सिस्टम द मीन पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर एवरेज इज अबाउट 16 mmHg. सो पल्मोनरी आर्टरी में क्या होता है? प्रेशर कितना है? 16 mmHg. और देन द मीन लेफ्ट arterial pressure is 2 mmHg. So the pressure in pulmonary artery is 16 mmHg. और arterial pressure, left arterial pressure is 2 mmHg. Understood? So giving a net pressure difference is 14 mmHg. Pressure difference कितना हो गया फिर? 14. Therefore, when the cardiac output is normal at 100 ml per second, then total peripheral vascular resistance कितना हो जाएगा? 14 divided by 100 is 0.14. इसका मतलब क्या हो गया कि रेजिस्टेंस मतलब फ्लो अच्छा है, अबाउट 1/7 that is in the systemic circulation. Understood? So this is quite a maths. Again and again देखो हो जाएगा. अगर किसी को नहीं समझता तो आपको कमेंट बॉक्स में बोलो, मैं उसको समझा दूँ. So conductance of the blood in vessels and its relation to the resistance. Conductance is a measure of blood flow through a vessel for a given pressure difference. क्या लिखा यहाँ पर? Conductance is a measure. Conductance is what? It is the measurement of a blood flow through vessel. एक प्रेशर डिफरेंस दिया होगा तो उसमें. ठीक है. अगेन conductance is what? It is nothing but the measure of blood flow through a vessel for a pressure difference. अगर एक प्रेशर डिफरेंस दिया होगा तो. So this is generally expressed in terms of millimeter per second. Okay, per millimeter of mercury. So प्रेशर डिफरेंस क्या हो गया? मर्क्यूरी का हो गया. और वेसल का है पर ml per second पे फ्लो डिवाइडेड बाय प्रेशर डिफरेंस. ठीक है. दिस इज कंडक्टेंस. इसका मतलब रेजिस्टेंस का अपोजिट. रेजिस्टेंस क्या था? प्रेशर डिफरेंस डिवाइडेड बाय फ्लो. ठीक है. दिस इज
सो यहाँ देखो, यहाँ देखो, नहीं समझा तो फिर से एक बार देखो। यहाँ पर हम रेजिस्टेंस निकाल रहे हैं, यहाँ पर व्हाट वी आर डूइंग इज रेजिस्टेंस, ठीक है। सो व्हाट इज द प्रेशर डिफरेंस? दिस इज pulmonary artery. Pulmonary artery, what pulmonary artery do? Pulmonary artery will carry a blood from heart to lungs, ठीक है। So then this will come to left atria, okay, through pulmonary vein, ठीक। So this here in pulmonary artery the pressure is 16 mm Hg, ठीक। और बट यहाँ पर प्रेशर कितना है? 2 mm Hg, ठीक है। सो इसका और इसके अंदर का जब डिफरेंस देखो, मतलब यहाँ का और यहाँ का डिफरेंस देखोगे, सो प्रेशर डिफरेंस इज विल व्हाट 14, ठीक। सो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है अपना? रेजिस्टेंस इज नथिंग बट प्रेशर डिफरेंस डिवाइडेड बाय फ्लो। सो फ्लो कितना है हमारा? 100 ml पर सेकेंड। नॉर्मल कार्डियक फ्लो कितना होता है? 100 ml पर सेकेंड। सो यहाँ पर हम लोग 100 लिख देंगे। सो द रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 14 डिवाइडेड बाय 100, ठीक। सो 14 डिवाइडेड बाय 100 इज नथिंग बट, सो दिस रेजिस्टेंस इज 0.14। सो काउंट करने का यूनिट क्या है? PRU, पेरिफेरल रेजिस्टेंस यूनिट। सो 0.14 पेरिफेरल रेजिस्टेंस यूनिट, ये उसका सर्कुलेशन का, अपना सिस्टम सर्कुलेशन का ये है, मतलब ये हो गया अपना रेजिस्टेंस। अब कैपेसिटेंस इज व्हाट? कैपेसिटेंस इज रिवर्स ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। सो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होगा? रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या था? प्रेशर डिफरेंस डिवाइडेड बाय फ्लो। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, अगर ये ऊपर चले जाएगा, दिस फ्लो डिवाइडेड बाय प्रेशर डिफरेंस, this formula, okay। So now I think you have understood, so please guys focus। So this is the measure of a blood flow through vessel for a given pressure difference, okay। ये हो गया, ये हो गया, ये अपना फॉर्मूला यहाँ तक आ गया था। अब ये पूरा एक बार आप फिर से पढ़ लेना, तब तुमको समझेगा, ठीक है। So now very slight change in the diameter of the vessel can change its conductance tremendously. Very slight change in the diameter of vessel can change its conductance tremendously. So there is what slight change in the diameter of vessel, okay। सिर्फ एकदम थोड़ा सा चेंज भी हो गया वेसल के डायमीटर में, फिर भी वो बहुत मेजर चेंज कॉज कर सकता है ब्लड का कंडक्ट करने में। अंडरस्टूड? मीन्स ब्लड फ्लो के ऊपर वो बहुत ज़्यादा चेंज इम्प्रेशन कर सकता है, मतलब इफेक्ट कर सकता है। अगेन स्लाइट चेंज इन द डायमीटर ऑफ वेसल कॉज अ ट्रमेंडस चेंज, मतलब बहुत सारा चेंज इन द वेसल्स एबिलिटी, वेसल की एबिलिटी जो ब्लड कंडक्ट करने की होगी वो बहुत चेंज हो जाएगी, टू कंडक्ट द ब्लड व्हेन द ब्लड फ्लो इज स्ट्रीमलाइन। अंडरस्टूड? क्यों? बिकॉज रेजिस्टेंस विल बढ़ जाएगा। रेजिस्टेंस बढ़ा, इसका मतलब कंडक्टेंस कम हुआ। सो कंडक्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। अंडरस्टूड? सो कंडक्टेंस नॉट अ कैपेसिटेंस, ओके। सो थोड़ी देर पहले मैं बोल रहा था कैपेसिटेंस मुंह से, तो ये पढ़ते पढ़ते ही हो जाता है, ठीक है गाइस। So I hope you had. So this demonstrated by the experiment illustrated in the figure 14.9a, okay। So which shows the three vessels of relatively 1 to 4 diameter, मतलब एक की डायमीटर 1 है, एक की डायमीटर 2 है, एक की डायमीटर 4 है। इसका मतलब डायमीटर इंक्रीज हो रहा है, बट विद द सेम प्रेशर डिफरेंस 100 Hg, तो प्रेशर डिफरेंस सेम है, ठीक है। सो द बिटवीन टू एंड्स ऑफ वेसल्स,
ओके, प्रेशर डिफरेंस दो एंड में का सेम है. सो ऑल्दो द डायमीटर ऑफ दीज वेसल increase only fourfold. ठीक, so the respective flows are 1, 16 और 256. इसका मतलब हमने सिर्फ डायमीटर 1, 2 और 4 ऐसे चेंज किया, तो उसका लेकिन फ्लो कितना चेंज हो रहा है. जैसे पहले में 1 है, दूसरे के अंदर 16, इसके बाद 256 ml/m. इसका मतलब जो फ्लो है वो 256 फोल्ड इंक्रीज हुआ. ठीक है, डायमीटर हमने सिर्फ 4 फोल्ड इंक्रीज किया, ठीक, लेकिन 256 फोल्ड फ्लो इंक्रीज हो रहा है. अंडरस्टूड. सो इसका मतलब जो डायमीटर है वो ज़्यादा वो इफेक्ट करता है. सो द कंडक्टेंस ऑफ द वेसल इंक्रीज इन प्रोपोर्शन टू द 4th पावर ऑफ डायमीटर in accordance with the following formula. Of course, तो कंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा. कंडक्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द 4th पावर ऑफ डायमीटर. ओके, सो अब यहाँ देख लो डायग्राम, इसके डायग्राम में देख लो. डायग्राम के अंदर क्या है, दिस इज वेसल, दिस इज स्मॉल वेसल. ऑफ कोर्स इसके अंदर से फ्लो कम होगा, इसके अंदर से फ्लो ज़्यादा हो जाएगा. ठीक है, ओके, फ्रॉम हियर फ्लो विल लेस, हियर फ्लो विल मोर. बट यहाँ पर डायमीटर 1 है, यहाँ पे डायमीटर तो 2 है, यहाँ पे डायमीटर 4 है. सो 1 डायमीटर का अगर वेसल है तो उसके अंदर से फ्लो कितना होगा, 1 ml/minute. अगर सेकेंड डायमीटर है, मतलब डायमीटर 2 है, तो यहाँ पर फ्लो कितना होगा, 16 ml/minute. बट वहीं पर प्रेशर डिफरेंस सेम है दोनों का. अगर वहीं यहीं पर डायमीटर अगर 4 है तो उसका फ्लो कितना होगा, 256 ml/minute. अंडरस्टूड गाइज. सो दिस इज द वे. इसका मतलब जैसे जैसे डायमीटर अगर फोल्ड, सो कंडक्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द 4th पावर ऑफ डायमीटर. ओके गाइज, सो नाउ अब हम देखते हैं पॉइसल्स लॉ, पॉइसलीज लॉ. ठीक है, so this the cause of this great increase in conductance is what, diameter increase. वो हम एक्सप्लेन कर सकते हैं पॉइसलीज लॉ से. मतलब अगर this great increase in conductance only decrease in increase in diameter, वो हमने एक्सप्लेन किया है पॉइसलीज लॉ से. ठीक है, so which shows this 19b जो फिगर है वो देख लेना. 19b 14.9b, where is 14.9b? 14.9b is this one. Okay, so this is larger one diameter and this is smaller diameter. Okay, so just keep in remember. So now this shows, which shows the cross section of large and small vessel. ठीक है, so the concentric rings inside the vessel indicate that the velocity of flow in the each ring is different from that in the adjacent rings because of laminar flow. Of course, so concentric rings means मतलब जो बीच बीच में जो रिंग्स है ना दूसरे, ये जो बीच वाले जो रिंग्स है, इसके अंदर हर एक में अलग अलग डिफरेंस है, मतलब फ्लो में डिफरेंस है. ठीक है. Okay guys, this was part 2 of chapter 14 from Guyton. So if you like, do like, share, subscribe, and we will complete our remaining topic in part 3 of chapter. Thank you.